हाँ भाई। तो आज हम लोग अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप में आगे हेडिंग डालो अपने पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी में सबसे पहला मेथड डालो एक्सपेंस मेथड। एक्सपेंस मेथड। चलो अब इसमें लिखना शुरू करो। पहले थोड़ा बहुत लिखेंगे फिर समझने वाला पोर्शन करेंगे। लिखो अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड the premium paid, the premium paid for the policy, the premium paid for the policy is treated as, is treated as an expense, is treated as an expense अब डालो इसके नीचे पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए, व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड। लिखो इसमें जर्नल एंट्री लिखो नीचे जेएलपी प्रीमियम डेबिट, जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक। पॉइंट नंबर बी, व्हेन प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड टू, when premium is transferred to P&L appropriation, premium is transferred to P&L appropriation। नीचे जर्नल एंट्री लिखो P&L appropriation debit to JLP premium। Next, point number C. If a partner dies or retires, if a partner dies or retires and claim amount or surrender value is received, or surrender value is received। नीचे जर्नल एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्लेम लिख लो चाहे तो जेएलपी क्लेम। पॉइंट नंबर डी, व्हेन JLP claim is distributed among old partners in old ratio। तो नीचे जर्नल एंट्री लिखो
JLP claim debit to old partners capital account। तो पहला मेथड हो गया हमारा एक्सपेंस मेथड। आगे डालो सेकंड पॉइंट, असेट मेथड। असेट मेथड लिखो, अंडर दिस मेथड the premium paid under this method the premium paid for the policy is considered as an asset, तो अपने पास नीचे डालो पॉइंट नंबर ए, when JLP premium is treated as an asset, तो जर्नल एंट्री लिखो अपने पास, JLP asset debit to bank, JLP asset debit to बैंक। अमाउंट में लिख दो प्रीमियम अमाउंट। बी पॉइंट डालो, एट द एंड ऑफ द ईयर if surrender value at the end of the year, if the surrender value is less than the book value, then the difference is transferred to P&L appropriation, नीचे जर्नल एंट्री लिखो, P&L appropriation debit to JLP asset, P&L appropriation debit to JLP asset। अमाउंट में लिखो बुक वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू, आगे अभी सी पॉइंट डालने से पहले नीचे लिखो, JLP asset will be shown in the balance sheet as asset। Next point number C, when a partner dies and the sum assured oblique surrender value is received,
ऑब्लिक सरेंडर वैल्यू इज रिसीव्ड। तुमने जहां लिखा है ना डाइज, डाइज के आगे ऑब्लिक करके लिख दो रिटायर्स। व्हेन अ पार्टनर डाइज ऑब्लिक रिटायर्स। तो नीचे एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP असेट। अमाउंट में लिखो सम अश्योर्ड और सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट, when profit is transferred, when profit is transferred among the partners, when profit is transferred among the partners, तो नीचे एंट्री लिखो JLP asset debit to old partners capital account। इसमें ना आगे ओल्ड रेशियो भी लिख लो। तीसरा मेथड लिखो, थर्ड मेथड है सिंकिंग फंड मेथड। लिखो इसके अंदर, अंडर दिस मेथड profits equal to premium, profits equal to premium are transferred to sinking fund every year, are transferred to sinking fund every year full stop। sinking fund is also called JLP reserve और JLP fund। फुल स्टॉप। आगे लिखो कैश इक्वल टू प्रॉफिट्स, कैश इक्वल टू प्रॉफिट्स set aside is invested in JLP, is invested in JLP। इसमें डालो अब नीचे पॉइंट नंबर ए, when profits are transferred to JLP reserve। एंट्री लिखो P&L appropriation debit to JLP reserve। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, when premium is paid, when premium is paid
तो नीचे एंट्री लिखो, JLP असेट डेबिट टू बैंक, JLP असेट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर C, JLP asset should be shown, JLP asset should be shown in the balance sheet at its surrender value, in the balance sheet at its surrender value। Full stop। If the surrender value, if the surrender value is less than the book value, if surrender value is less than the book value, comma, the balance has to be written off, the balance has to be written off by charging to JLP reserve account, by charging to JLP reserve account। तो नीचे जर्नल एंट्री लिखो, JLP रिजर्व डेबिट टू JLP असेट, अमाउंट में लिखो बुक वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू। पॉइंट नंबर D, क्रेडिट बैलेंस इन JLP रिजर्व, credit balance in JLP reserve will be shown on the liability side, will be shown on the liability side, and JLP asset will be shown, and JLP asset will be shown on the asset side with equal amounts, with equal amounts। Next point number E, when a partner dies or retires, when a partner dies or retires and sum assured, and sum assured or surrender value is received, or surrender value is received। तो नीचे एक एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP असेट, अमाउंट में आएगा सम अश्योर्ड या फिर सरेंडर वैल्यू, सम अश्योर्ड या फिर सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट F पॉइंट, द बैलेंस इन JLP asset account, the balance in JLP asset account after death or retirement, after death or retirement represents profit, represents profit which should be transferred to, which should be transferred to JLP reserve, which should be transferred to JLP reserve। तो नीचे एक जर्नल एंट्री लिखो, JLP asset debit to JLP reserve।
और लास्ट पॉइंट फिर खत्म लिखने वाला काम, द क्रेडिट बैलेंस इन JLP रिजर्व, द क्रेडिट बैलेंस इन JLP रिजर्व represents profit, represents profit. Full. It should be shared among all the partners. It should be shared among all the partners in their old ratio. In their old ratio. नीचे जर्नल एंट्री लिखो, JLP रिजर्व डेबिट, JLP रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो तो हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सारा जो चिट्ठा था पूरा लिख लिया है। अब एक बार बस समझने पे ध्यान देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। मैं इसीलिए पार्टनरशिप हमेशा लास्ट में करता हूँ, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लास्ट में याद होनी चाहिए। बाकी सब तुम्हें पार्टनरशिप में आता है जो क्योंकि 12th में पढ़ रखा है, बट ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी नया है, इसको ध्यान से समझ लेना। बार बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं अगली बार अगर कहेगा कोई तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा, रिकॉर्डिंग जाके देखेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, एकदम नहीं आता समझ। तो तुम्हें पूरी कॉन्सेंट्रेशन से समझना है और कुछ नहीं करना है, बस सारा का सारा ध्यान सिर्फ समझने पे लगाना है। इधर आओ जी। तो लेट अस सपोज एक फर्म है, फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब तुम्हें क्या लगता है, तो क्या बताओगे? क्या है जॉइंट लाइफ पॉलिसी? इंश्योरेंस, तीनों का एक साथ इंश्योरेंस। देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से सब बच्चों को एक ही चीज लगती है, क्या कि मतलब तीनों की लाइफ पे आपने एक पॉलिसी ले ली, वो हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, बट ये एट द सेम टाइम अधूरा भी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि तीनों की लाइफ पे एक पॉलिसी ही ली जा सकती है। आप तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी भी ले सकते हो, कि ए की लाइफ की अलग, बी की लाइफ की अलग, सी की लाइफ की अलग। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसलिए नहीं बोलते कि आप तीनों की लाइफ पे एक पॉलिसी ले रहे हो या तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी ले रहे हो, नहीं। इसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इन तीनों का जो प्रीमियम है वो फर्म से पे करवा रहे हो। ठीक है, जो भी पॉलिसी आप लोगे तीनों की लाइफ पे अलग अलग ले लो या तीनों की लाइफ पे एक पॉलिसी ले लो, आप अगर उसका प्रीमियम फर्म से पे करवा रहे हो तभी वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहलाई जाएगी। अदरवाइज अगर पार्टनर्स खुद अपने आप से भर रहे हैं प्राइवेटली तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो या तो हम इंडिविजुअल कवर ले लें, मैंने देखो से अम्ब्रेला सा बना दिया। ठीक है, या फिर तीनों की लाइफ पे एक बड़ा कवर ले लो, कैसे भी ले लो। ये मैंने अम्ब्रेला बना दिया कवर, इंश्योरेंस कवर। ठीक है, बट पॉइंट क्या है, जब तक ये प्रीमियम फर्म पे कर रही है तभी ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म पे कर रही है यानी कि तीनों का जो प्रीमियम है वो फर्म की बुक्स में आ रहा होगा, और फर्म की बुक्स में आ रहा होगा तो वो प्रीमियम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तीनों की लाइफ पे प्रीमियम फर्म पे कर रही है और फर्म इंश्योरेंस करवा रही है, तो फर्म एक्सपेंस बुक करेगी, एक्सपेंस बुक करेगी तो प्रॉफिट्स में जाएगा और प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब तीनों के तीनों पार्टनर्स ये खर्चा उठा रहे हैं प्रीमियम का, और किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये है हमारे लिए JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब पॉलिसी में कुछ चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, आपको पॉलिसी तभी मिल सकती है जब आप प्रीमियम पे करते हो।
इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको इंश्योरेंस कंपनी खुद बताती है, उनके पास एक्चुअरीज बैठे होते हैं, एक्चुअरीज प्रीमियम का अमाउंट निकालते हैं और बता देते हैं कितना अमाउंट आपको इंश्योरेंस का लेना है। जैसे तुम कभी फ़ोन लेते हो नया, तो फ़ोन का इंश्योरेंस होता है। आजकल तो आप जो भी सामान खरीद रहे हो उसका इंश्योरेंस मिल जाता है, एसी खरीदो उसका भी मिल जाता है, कभी कभी है फ्रिज खरीदो उसका भी मिल जाता है, और लाइफ का और हेल्थ का तो कब से चल ही रहा है, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी लोगे तब तक उसमें प्रीमियम नहीं पे करोगे, आपको कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलने वाली। ज़्यादातर पॉलिसीज़ 1 साल की होती हैं, मतलब जो भी जनरल इंश्योरेंस होता है वो सारा का सारा 1 साल का होता है, और जो नॉर्मल लाइफ की पॉलिसीज़ होती हैं वो कई सालों की होती हैं, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस से मतलब जैसे तुमने अपने फ़ोन का इंश्योरेंस करवाया, तो मैंने अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया। कुछ बच्चों को लगता है हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में आता है, नहीं। लाइफ 2 तरीके की इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ लाइफ का ही इंश्योरेंस करती है, मतलब वो पैसा तब देती है जब आदमी मर जाता है, और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वो इंश्योरेंस करती है जो है लाइफ के अलावा होती है, यानी कि आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस, मोबाइल का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, अप्लायंसेस का इंश्योरेंस, चोरी का इंश्योरेंस, आग लगने का इंश्योरेंस, ये सब कहाँ कौन करता है? जनरल इंश्योरेंस कंपनीज करती है, ठीक है। अब हमारे लिए रेलेवेंट अभी है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज है तो जो तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है प्रीमियम, वो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है तभी आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। फिर एक वर्ड होता है पॉलिसी का अमाउंट, जिसको कि हम सम अश्योर्ड भी बोल सकते हैं। सम अश्योर्ड, ASSURED, अश्योर्ड। इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसकी डेथ पे जो अश्योर्ड अमाउंट है, कंफर्म्ड अमाउंट है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, उसको बोलते हैं हम सम अश्योर्ड, ठीक है। एक वर्ड होता है मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट। ये क्या होता है? ये होता है अगर आपने कभी पॉलिसी ली फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए और आप 20 साल जी गए, आप 20 साल में मरे नहीं, तो पॉलिसी 20 साल बाद जब आपकी ख़त्म होगी तब आपको जो पैसा मिलेगा जिंदा रहने पे उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू और सम अश्योर्ड में फ़र्क हो सकता है। सम अश्योर्ड क्या है कि डेथ के इवेंट पे, डेथ होगी तो कितना पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी पे कई बार उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है, क्योंकि सम अश्योर्ड एक कैलकुलेशन की बेसिस पे निकाला जाता है। मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है ना, वो निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इनका जो रिटर्न मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी को आपके प्रीमियम के ऊपर। तुम जो प्रीमियम देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, वो क्या करती है? उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके उस पर कमाती है, और फिर वो कमाई तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारी पॉलिसी में ऐड करती चल जाती है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा रिटर्न मिला तो फिर क्या होगा? आपको भी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जब मैच्योरिटी होगी तो हो सकता है वो अमाउंट मैच्योरिटी का सम अश्योर्ड से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको भी अलग से डिस्कस कर लिया। और तीसरा जो टर्म होता है उसको बोलते हैं हम सरेंडर वैल्यू, ठीक है। सरेंडर वैल्यू में ये वर्ड सरेंडर से समझते हो? सरेंडर का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। जैसे पाकिस्तान ने 1971 वॉर में हार मानी थी, पता तुम लोगों को? 1971 में जब इंडिया ने बांग्लादेश को अलग करवाया था तो पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी। इमेजिन करो, 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। ये सेकंड बिगेस्ट सरेंडर था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा सरेंडर किए थे, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सरेंडर किया था इंडिया के सामने पाकिस्तान ने 93,000 सोल्जर्स से सरेंडर किया था, ठीक है। तो और तुम्हें पता उस समय पे इंडियंस थे भी नहीं थे वहाँ पे, जितने सरेंडर कर चुके थे ना इंडियंस बहुत ही कम थे। आई थिंक 5-6 हज़ार 10 हज़ार कुछ होंगे या उससे भी कम होंगे। इतने सारे सोल्जर्स ने 93,000 की हवा टाइट करवा दी थी। इंडियंस ने बहुत अलग अलग टैक्टिक्स लगाई थी और पाकिस्तानियों के उनको बहुत वो किया था, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक और डर क्रिएट करवा दिया था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो सरेंडर का मतलब क्या है? आप हार मान लेते हो कि भैया बीच में ही आपने छोड़ दिया कि भैया मुझे आगे नहीं लड़ना।
सेम चीज़ इंश्योरेंस कंपनी के साथ होता है कि जब आप एक पॉलिसी ले रहे हो तो पॉलिसी लेते वक्त आपने टर्म डिसाइड किया कि 20 साल का हम प्रीमियम पे करेंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ। ठीक है, अब अगर तुमने वो पॉलिसी बीच में ही तोड़ दी कि भैया बस हो गया मेरा, मैं और नहीं लेना चाहता, बस जितना दे दिया, तो फिर पॉलिसी जो बीच में तोड़ोगे तो तोड़ के जो पैसा तुम्हें मिलेगा उसको बोलते हैं हम सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप शुरुआती सालों में पॉलिसी लेते हो स्टार्टिंग के ईयर्स में, तो आपको प्रीमियम का अमाउंट जो देना पड़ता है, लेट अस सपोज प्रीमियम का अमाउंट तुमने दिया 50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो उस 50,000 रुपये की जो सरेंडर वैल्यू होगी ना फर्स्ट ईयर में, वो जीरो होगी। यानी कि तुमने एक साल प्रीमियम पे किया 50,000, फिर 6 महीने बाद ही इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के एक साल हो गया, 6 महीने बाद तुम्हें लग रहा है नहीं मुझे नहीं लेना आगे। ठीक है, तो तुमने पॉलिसी के बीच में तोड़ी तो पहले 2-3 साल में तुम्हें ठेंगा नहीं मिलेगा, सारा का सारा पैसा खत्म, कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो होता क्या है, आप इनिशियली में जो प्रीमियम भरते हो वो प्रीमियम की वैल्यू बहुत हाई होती है और आपको सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं मिलती। बट जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो, प्रीमियम का अमाउंट तो सेम रहेगा जो फर्स्ट ईयर में पे किया था, बट धीरे धीरे उसकी सरेंडर वैल्यू बढ़ती चली जाती है और एक पॉइंट के बाद सरेंडर वैल्यू जो होती है वो प्रीमियम के अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बट शुरुआती सालों में क्या होगा मैं दिखा देता हूं, जैसे यहां पे ईयर प्रीमियम सरेंडर वैल्यू, तो मान लो ईयर 1 पे तुमने 50,000 रुपये का प्रीमियम पे करा, तो उसकी सरेंडर वैल्यू है मान लो फर्स्ट ईयर में 0, ईयर 2 में फिर तुम 50,000 पे करोगे, कभी कभी यहाँ पे भी 0 होती है, पर मैं हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, लेट अस सपोज ये 6,000 रुपये हो गई। ठीक है, देख रहे हो तुम कितने जमा कर चुके हो, 1 लाख, पर अब अगर 2 साल बाद पॉलिसी तोड़ोगे तो वापस से 6,000 ही मिल रहा है। ठीक, ईयर 3 पे मान लो तुमने फिर से 50,000 पे करा, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, मान लो 10,000 या 15,000 ले लो, फिर 50,000 फिर पे करा, फिर ये मान लो 30,000 हो गया। तो धीरे धीरे सरेंडर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चल जाती है, बट स्टार्टिंग के सालों में हमेशा ये कम रहती है और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस वक्त तुमने जितना प्रीमियम पे कर चुके उससे ज़्यादा हो जाएगी सरेंडर वैल्यू उसकी। ठीक है, बट शुरुआती सालों में वो कम रहेगी। ठीक, तो तीनों की लाइफ पे आपने क्या लिया, लेट अस सपोज अलग अलग पॉलिसी ली, तो मान लेते एक की लाइफ पे ली 5 लाख, इसकी पे 4 लाख, इसकी पे 3 लाख। तो इसका मतलब क्या है, ए बी की सी की लाइफ पे आपने पॉलिसी ली कि अगर ए की डेथ हो गई तो सम अश्योर्ड कितना मिलेगा, 5 लाख, बी की 4 लाख और सी की 3 लाख। करेक्ट। अब लेट अस सपोज हमारे पार्टनर ए की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डेथ के केस में इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देने वाली है, ए का 5 लाख देगी। तो जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए पहली बात तो किसको देंगे, ए को नहीं देंगे, फर्म को देंगे। ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेगा, ना ही ए को मिलेगा, मतलब ए के किसी को भी नहीं मिलेगा, सीधा सीधा ये 5 लाख फर्म को मिलेगा। और ये 5 लाख रुपए जो हैं वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ए, बी और सी में। तुम कहोगे क्यों सर, जब पॉलिसी ली है ए की तो ए के में जाना चाहिए, ए को मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी तब मैंने क्या बोला था कि इन तीनों की लाइफ पे जो पॉलिसी है वो प्रीमियम कौन बेयर कर रहा होगा, फर्म बेयर कर रही होगी, फर्म में प्रॉफिट्स में डाल रही होगी, और वो खर्चा कौन बेयर कर रहा होगा, तीनों पार्टनर्स। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फिर जब ये 5 लाख रुपए मिलेंगे तो वो अकेले एक को कैसे ले जाने देंगे, है कि नहीं, क्या कहेंगे, पॉलिसी का प्रीमियम तेरा हमने भी भरा है ना, तो हमें भी चाहिए, तो 5 लाख को ए, बी और सी में बांटेंगे। तो देखो ये रहा ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये ए का एलआर है, ये ऑलरेडी रो रहा था, देखो आंखें सूज रखी है, काली काली हो रखी हैं। जैसे ही सुना कि 5 लाख रुपए नहीं मिलने वाले,
और मोटे मोटे आंसू निकाल निकाल के रोने लग रहा है, कह रहा है हाय अल्लाह हाय अल्लाह, ये तो क्या हो गया। जहां पे मैं पहले सोच के बैठा था कि डेथ पे 5 लाख रुपए मिलेंगे, अब वो भी नहीं मिल रहे, उसमें भी इन भुक्कड़ लालचियों को पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो इसमें से भी पैसा मांग रहे हैं। तो फिर पहले ए ने खूब रोया रोया रोया, उसके बाद देखा ना फिल्मों में विलन को पहले गुस्सा आता है जब उसकी माँ की डेथ होती है, वो सॉरी हीरो को, फिर वो गुस्से से उठता है, फिर क्या कहता है, अब मैं बदला लूंगा, करेक्ट। तो अब ए का लीगल एयर आंसू पोछे और फिर गुस्से से उठा और क्या कहता है, अब मैं बदला लूंगा। तुम अगर मेरे पापा की पॉलिसी में पैसा मांग रहे हो तो मैं फिर तुम्हारी पॉलिसी में पैसा मांगूंगा, यानी कि वो जाके क्या करेगा, बी और सी के पेट में चाकू मार देगा, यही तो करेगा ताकि बी और सी की पॉलिसी का पैसा मिल जाए, है कि नहीं। तो मार दे, कर दे कत्लेआम, नहीं क्या करे फिर, वेट करे। एक ऑप्शन तो ये है कि बी और सी जब मर जाएं फिर पैसा ले। अब बी और सी को मरने में 20 साल 25 साल लग जाएं, पता है कुछ नहीं, तो क्या करे, बी और सी की पॉलिसी आज सरेंडर करवा दे और क्या कहे, आज के दिन तुम्हारी पॉलिसी का जितना पैसा मुझे मिलता है मैं वो भी लूंगा, ठीक है। तो जब मौत हुई तो ए की तो पॉलिसी सम एश्योर्ड मिलेगा, बी और सी का क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। आज ही कहेगा आज ही पॉलिसी अपनी तोड़ो, ठीक है, और पॉलिसी तोड़ के पैसा मंगवाओ और वो पैसा तुम मुझे दो, ठीक है। तो बी और सी फिर फोन करेंगे इंश्योरेंस कंपनी में और पूछेंगे जल्दी से बताओ आज हमारी पॉलिसी अगर तोड़ी जाए तो उसके कितने पैसे मिलेंगे। तो लेट अस सपोज बी की पॉलिसी के मिलेंगे 1.5 लाख और मान लो सी की पॉलिसी के मिलेंगे 1 लाख। तो ए क्या कहेगा कि इन 2.5 लाख रुपए में मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए। तो होगा क्या, सिर्फ 5 लाख नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी, 5 लाख के अलावा 1.5 लाख रुपए बी का देगी, 1 लाख रुपए सी का देगी और 5 लाख रुपए ए का। तो इन टोटल 7.5 लाख रुपए देंगे जो कि ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो अब सही ट्रीटमेंट हुआ क्योंकि तीनों ने प्रीमियम बेयर किया है, तो तीनों ही उससे होने वाले फायदे को भी उठाएंगे अपने पास, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट 7.5 लाख रुपए का, यानी कि तीनों की पॉलिसीज का प्रीमियम मिलेगा। अच्छा लेट अस सपोज ए की मौत नहीं होती, ए नहीं मरा, बट ए ने रिटायरमेंट ले ली, तब क्या होगा, ए रिटायर हुआ तब क्या करेंगे, तो ए जब जाएगा तो वो अपनी पॉलिसी सरेंडर करेगा, ठीक है। मरा तो नहीं ना, तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं ना, ये तो नहीं कि अपने पेट पे चक्कू मार लेगा और कहेगा कि आप मुझे दिलवा दो सम एश्योर्ड, नहीं, क्या करेगा, अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेगा। मान लो उसकी पॉलिसी 2 लाख रुपए की सरेंडर वैल्यू रखती है, तो जैसे ही वो सरेंडर करेगा भूखे नंगे आ जाएंगे, क्या कहेंगे हमें भी चाहिए, यानी कि 2 लाख रुपए भी मांगेंगे वो बी और सी। तो फिर वो क्या कहेगा, तुम्हारी भी सरेंडर करवाऊंगा, तुम मैं बदला लूंगा, चुन चुन के बदला लूंगा। तो अगर तुम मेरी पॉलिसी में पैसा मांगोगे तो मैं तुम्हारी पॉलिसी में पैसा मांगूंगा, यानी कि वो इन दोनों की पॉलिसी भी करवाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि भैया पैसा तीनों को मिलेगा, तीनों की पॉलिसी का। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा पैसा मिलेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर डेथ हो गई तो फिर सम एश्योर्ड मिलेगा जिसकी डेथ हुई और बाकियों का सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और अगर रिटायर हुआ है तो सभी की सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो ये बात क्लियर है। अपने पास ये बात लिखना चाहोगे एक बार नोट में लिख लो, नीचे नोट बना के नीचे लिख लो, in case a partner dies, in case a partner dies, the sum assured of his policy is received, the sum assured of his policy is received and
surrender value of the remaining partners is received, and surrender value of the remaining partners is received. एक और नोट डालो, एक और नोट लिखो. In case any partner retires, then surrender value of all the partners is received. Then surrender value of all the partners is received. ठीक है, चलो अब लेट अस सपोज मैं इनकी पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट भी लिख रहा हूं यहां पे. तो मान लो इनकी पॉलिसी का प्रीमियम कुछ इस तरीके से है. ए की पॉलिसी का ले लो 50,000, 40,000, 30,000. ठीक है, अब हम इनकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि इनकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहला मेथड हम वो करेंगे जो तुम्हें बचपन से सिखाया जा रहा है. तुम्हें जब भी तुम देखते थे इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसको कहां ट्रांसफर कर देते थे? ईयर एंड पे. इंश्योरेंस प्रीमियम रिजर्व में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कहाँ ट्रांसफर कर देते थे इंश्योरेंस? ईयर एंड पे, बैलेंस शीट. बहुत बढ़िया. P&L में एज एन एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हो P&L में, और P&L में इंश्योरेंस प्रीमियम भी एज एक्सपेंस दिखाते हैं. तो पहला मेथड ही क्या है? एक्सपेंस मेथड. तो हम क्या करते हैं एक्सपेंस मेथड में कि हमने जो भी प्रीमियम पे करा है वो सारा का सारा प्रीमियम हम एक खर्चे की तरह मानेंगे. ठीक है, तो लेट अस सपोज ये हमारी प्रीमियम का अमाउंट है. तो एक्सपेंस मेथड में क्या करेंगे? ये एंट्री पास करेंगे एक्सपेंस की. तो एंट्री करेंगे हम JLP प्रीमियम डेबिट टू बैंक. 50 + 40 90, 90 + 30 1,20,000. और इस 1,20,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर्स का है तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा. तो एंट्री हो जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLP प्रीमियम 1,20,000. अब ये एंट्री कंपनी हर साल करती जाएगी जब तक पार्टनर्स जिंदा हैं. कोई पार्टनर रिटायर हो ना, यही एंट्री रिपीट होती जाएगी. अब लेट अस सपोज 5 साल हो गए हैं, तो 5 सालों तक फर्म ये एंट्री करती चली जाएगी और कुछ नहीं करेगी इसके अलावा. ठीक है, 5 साल बाद मान लो ए की डेथ हो जाती है, तो बताओ पैसा कितना मिलेगा? 5 साल बाद ए की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट देगी? बस ए की डेथ हो जाती है 5 साल बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी? बस. नालायक हो, अभी डिस्कस किया था. बी और सी की सरेंडर वैल्यू भी मिलेगी. सिर्फ ए का ही पैसा क्यों मिलेगा? 5 लाख रुपए ये मिलेंगे और बी और सी के ये भी मिलेगा. ये समझ में आया क्यों? क्योंकि ए का पैसा बी और सी में बटेगा, तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी की पॉलिसी की भी पैसा मांगेगा. उनको मर्डर तो नहीं कर देगा, जाके उनकी पॉलिसी सरेंडर करवाएगा. तो कितने मिलेंगे? 7.5 लाख रुपए. तो देखो कंपनी फर्म क्या कर रही थी? प्रीमियम जितना भी पे करती थी उस प्रीमियम को सीधा सीधा खर्चा मान लेती थी. अब उस प्रीमियम के बदले सीधा सीधा कुछ पैसा मिल गया तो उसको वो क्या मानेंगे फिर? इनकम. जब पहले प्रीमियम को एक्सपेंस मान रहे थे तो उसके बदले कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको क्या मानेंगे? वो इनकम. तो
आफ्टर 5 years जब कंपनी को पैसा मिलेगा, तो सोचो जब वो प्रीमियम पे कर रहे थे तो एंट्री कुछ ऐसी ये हो रही थी, अब जब क्लेम मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू जेएलपी क्लेम। तो 5 साल बाद एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी क्लेम। कितने मिल जाएंगे, सीधे सीधे 7.5 लाख रुपए। ठीक है, ये क्लेम वो कहां डाल देंगे, ये प्रीमियम कहां डाला था हमने, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होने से वो खर्चे की तरह बुक हो गया होगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्लेम को कहां डालेंगे हम, इस क्लेम को कहां डालेंगे, बैलेंस शीट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालो, वहां से पार्टनर्स को मिल जाएगा। बात तो एक ही है ना, अल्टीमेटली मिलना पार्टनर्स को उनके रेशियो में ही है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि क्या कर दो, जेएलपी क्लेम डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और फिर तीसरी एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, करेक्ट। वरना देखो सीधा सीधा ये कट सकता है, तब भी क्या बचा, जेएलपी क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 7.5 लाख रुपए डायरेक्टली हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये है हमारा पहला मेथड, जहां पे हम प्रीमियम जो पे कर रहे हैं उसको खर्चा मान रहे हैं, तो फिर उससे आता हुआ पैसा भी सारा इनकम मानेंगे और उसको इनकम के तौर पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास असेट मेथड। ठीक है, असेट मेथड में मैं वही ले रहा हूं, ए बी सी। अब इनका जो सम अश्योर्ड था वो कितना था, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, सरेंडर वैल्यू था 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, और प्रीमियम था 50,000, 40,000 और 30,000। ठीक है, एक काम करता हूँ, रुक जा, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, नहीं तो फिर ये कई बार समझ सा नहीं आता तुम लोगों को। अब इनकी मैं सरेंडर वैल्यू लिख रहा हूँ, ईयर 0, 1, 2 और 0, 1, 2 क्या, 1, 2, 3, ईयर पे 0, 0, 0, मतलब पहले साल कोई सरेंडर वैल्यू बनी नहीं, मतलब आज एक साल बाद पॉलिसी तोड़ोगे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, लेट अस सपोज 2 साल बाद एक की पॉलिसी में मिल जाएंगे 5,000, 4,000, 3,000, इसकी भी मिल जाएंगे लेट अस सपोज, कितना बनाया था हमने, कितना बनाया था, 15, कुछ भी बना लेते हैं लोग, 12 और 10, ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर्स ले ली मैंने। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से सोचो कि पॉलिसी का प्रीमियम तुम पे कर रहे हो और अभी तक क्या कर रहे थे, सारा का सारा प्रीमियम खर्चा मान रहे थे कि सारा खर्चा हो गया, कुछ नहीं आ रहा, करेक्ट। बट अगर तुम रियलिटी में देखो तो तुम्हें कुछ मिल भी रहा है। अगर पॉलिसी तोड़ दोगे तो पहले साल में भले ही कुछ ना मिल रहा हो, बट सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कुछ मिल सकता है। तो पूरे के पूरे पैसे को खर्चा मानना सही नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि आपको बदले में कुछ मिल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत जितना मिल रहा है वैल्यू उतने को असेट बुक करना चाहिए और बाकी को एक्सपेंस मानना चाहिए जितने तक नहीं मिल रहा। तो हम असेट मेथड में क्या करते हैं, हम इस जितना भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उसको अपने पास असेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे तुम्हारे को दिखा रहा हूं ईयर 1 पे एंट्रीज क्या होंगी। ईयर 1 पे कंपनी फर्म प्रीमियम पे करेगी, बट इस प्रीमियम को इस बार एक्सपेंस नहीं मानेगी, इस प्रीमियम को वो असेट की तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, वो
जहां पे हमने पहले जेएलपी प्रीमियम डेबिट किया था, अब हम जेएलपी असेट डेबिट करेंगे, क्योंकि हम इसको खर्चा नहीं असेट मान रहे हैं। तो जेएलपी असेट डेबिट टू बैंक, कितना प्रीमियम पे करा? 50 + 40 90, 90 + 30 1,20,000। ठीक है। अब ये कब है? साल के पहले दिन जब उन्होंने प्रीमियम पे करा। ठीक है, तो उन्होंने अपने पास एक जेएलपी असेट अकाउंट बना लिया। मैं जानबूझ के तुम्हें दिखा रहा हूं जेएलपी असेट अकाउंट बना के, तो तुम्हें दिखने भी लगेगा कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जा रही है। तो जेएलपी असेट डेबिट टू बैंक करा, तो एंट्री पोस्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा टू बैंक। ठीक है, मैंने एंट्री ही पोस्ट करी है बस, और कुछ नहीं किया। अब ईयर एंड पे, ये ईयर 1 का बिगिनिंग है, जब शुरुआत हुई थी, जब साल के आखिर में पहुंचे 31 मार्च पे, तो तुमने अपने पास असेट बुक कर रखा है 1,20,000 का। फिर तुम देखा यार चल के देखते तो हैं कि इस पॉलिसी का पहले साल के एंड पे कितना पैसा मिल सकता है। तो तुमने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करा और बोला कि बताओ अगर आज मैं पॉलिसी तोड़ दूं तो कितने पैसे मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा? ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपने पैसा पे कर तो दिया बट बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या करोगे? ये जो असेट बुक कर रखा है ये सारा का सारा बेकार है, मिलना कुछ नहीं है, तो किस बात का असेट? क्या करेंगे? इसको फिर हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, असेट राइट ऑफ कर देंगे, जैसे एक तरीके से बैड डेट हो गया कि पैसे तो दिए बदले में कुछ आए नहीं वापस। तो ईयर एंड पे हम क्या करेंगे? इस जेएलपी असेट को राइट ऑफ कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री बन जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू बैंक। ठीक है, सॉरी बैंक क्यों, टू जेएलपी असेट 1,20,000। तो अब इसको मैं पोस्ट कर दूं तो ये राइट ऑफ कर जाएंगे, तो यहां आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन 1,20,000। चलो, तो ये हो गया हमारा ये। नेक्स्ट ईयर 2 पे आते हैं। ईयर 2 पे हम फिर से प्रीमियम पे करेंगे, तो फिर से यही प्रीमियम पे करेंगे, तो फिर से यही एंट्री हो जाएगी। तो जेएलपी असेट डेबिट टू बैंक फिर से हुई, आओ जेएलपी असेट डेबिट टू बैंक फिर से हो गई 1,20,000। अच्छा, अब ईयर 2 पे फिर उन्होंने ये कर दिया, हमने ईयर 2 पे इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया और बोला आज अगर हम तीनों की पॉलिसी तोड़ देते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने हिसाब लगाया 5 + 4 9, 9 3 12, मतलब प्रीमियम कितना पे कर चुके हैं? 1,20,000, पर बदले में कितना मिलेगा? 12,000। तो हमने बेकार ही में 1,20,000 बुक कर रखा है, असेट से मिल कितना रहा है? सिर्फ 12। तो असेट कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 12 पे। अब हमने 1,20,000 पे रिकॉर्ड कर रखा है, रिकॉर्ड करना चाहिए था 12 पे, तो अब क्या करें? 1,08,000 हटा दो, राइट ऑफ कर दो, क्योंकि आपने उतने का बुक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम क्या करेंगे? ईयर 2 पे एक्सपेंस तो इतने डालेंगे, असेट तो इतने बुक करेंगे, बट राइट ऑफ जब करेंगे तो हम क्या करेंगे? जितना असेट एक्सेस बुक कर दिया उसको राइट ऑफ कर दो। तो 1,08,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे राइट ऑफ कर दो P&L अप्रोप्रिएशन 1,08,000। तो असेट कितने का रह गया? अब 12,000, वो आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये समझ में आ रहा है? असेट अब दिखने लग गया है हमारी बुक्स में कितने पे? 12,000 पे। वो अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 12,000 का। ठीक, नेक्स्ट थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर पे फिर प्रीमियम पे करेंगे, तो ईयर 3 पे फिर प्रीमियम पे करा हमने। एंट्री क्या बनी? जेएलपी असेट डेबिट टू बैंक 1,20,000 पोस्ट कर देते हैं। तो फिर से यहां डालो बैंक 1,20,000। तो असेट कितने का हो गया अब हमारा? असेट कितने का हो गया? 1,32,000।
ठीक है, एक 12 का तो था ही, 1,20,000 से और बढ़ गया, 1,32,000 का हो गया। अब ईयर 3 पे फिर फ़ोन किया और पूछा हमारे एसेट की कितनी वैल्यू, तो उन्होंने क्या बोला, 15 + 12 27, 27 + 10 37,000, ठीक है, 37,000 रुपये का आपका असेट है। और हमने रिकॉर्ड कितने पे कर रखा है, हमने तो हमारा टोटल असेट कितने का हो गया है, 37,000 का, हमने असेट कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है, 1,32,000 रुपये। 12 का तो पहले कर दिया था और 1,20,000 का साल की शुरुआत में कर दिया। ईयर एंड पे कितने का दिख रहा है, सिर्फ 32,000 रुपये, 37,000 रुपये का दिख रहा है कुछ, 37,000 का। तो हमने क्या करना है, 1,32,000 पे असेट बुक कर रखा है, जबकि देगा कितना वो पैसा हमें, सिर्फ 37,000। तो कितने से ज़्यादा बुक कर दिया, 93,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड है, नहीं 93 नहीं, 95,000 से वो ज़्यादा रिकॉर्डेड है। तो क्या करेंगे, 95,000 राइट ऑफ कर देंगे। नहीं आया समझ, आ गया? तो ईयर एंड पे 95 राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करेंगे तो फिर से यहां क्या डालेंगे हम, P&L अप्रोप्रिएशन 95,000 और क्या डाल दो लास्ट में, बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 37,000। असेट जितने का है, जितना पैसा दे जाएगा उतने पे रिकॉर्ड होगा। और अब लास्ट ईयर में आते हैं, फाइनल ईयर में। तो ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, अब मुझे बताओ फिर से, अब क्या चाहते हो, मैं पार्टनर को फर्स्ट डे पे रिटायर करूं, लास्ट डे पे रिटायर डेथ करवाऊं, फर्स्ट डे पे रिटायरमेंट डेथ करवाऊं, या लास्ट डे पे चाहते हो 1 साल की और अकाउंटिंग देखनी है, फर्स्ट पे करनी है? चलो जी बताओ, रिटायरमेंट देखना चाहोगे कि डेथ? मौत देखनी है। अच्छा चलो दोनों दिखा देता हूं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से, बहुत कॉमन सेंस है, बहुत छोटी सी चीज है। लेट अस सपोज ए हमारा रिटायर कर जाता है 3 साल के बाद, ठीक है? तो रिटायरमेंट पे ए की, सवाल देखना और अपना बताना, ए की रिटायरमेंट पे इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा, और वो तीसरे साल के आखिर में रिटायर हो रहा है, या कह लो चौथे साल के पहले दिन पे ही। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा? सरेंडर वैल्यू है, तीनों की सरेंडर वैल्यू की, एक की, तीनों की, यानी कि 37,000 मिलेगा। और असेट कितने पे रिकॉर्डेड है अभी? 37 पे तो है, 37 पे 37 मिल गए। कोई प्रॉफिट, कोई गेन, कोई लॉस नहीं। तो मान लो रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा। तो जब हम असेट खरीद रहे थे, एंट्री ये कर रहे थे, है कि नहीं, खरीदते थे मतलब। और जब हम असेट बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट टू JLP असेट। बेचे कितने पैसे आए जल्दी बताओ? 37,000। कोई प्रॉफिट या गेन हुआ? लॉस नहीं। तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, यहां पे डाल देंगे बैंक 37,000, और ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट की तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। देखो अगर मैं सिर्फ इतना कर दूं तो 37,000 का असेट 37,000 में मिल गया। अब इसका जो वो है, ये 37,000 ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्योंकि 37,000 से आपने प्रॉफिट्स राइट ऑफ करे नहीं पीछे के सालों में। चेक कर लो, हमने पहले साल 1,20,000 का खर्चा किया था और पूरा ही खत्म कर दिया था क्योंकि जीरो थी, 1,20,000 का एक्सपेंस बुक हो गया, ठीक। फिर सेकेंड ईयर पे हमने
1,20,000 में से 1,08,000 ही राइट ऑफ करा, तो 1,08,000 तो एक्सपेंस बुक हो गया, पर 12,000 खर्चा नहीं हुआ। 12,000 राइट ऑफ नहीं किया तो 12,000 का खर्चा नहीं हुआ। खर्चे तो पार्टनर से 12,000 रुपये एक्स्ट्रा बट गए होंगे, करेक्ट। फिर तीसरे साल में 1,20,000 और खर्चा किया, फिर कितना राइट ऑफ कर दिया, 95,000। तो 95,000 का एक्सपेंस बुक हो गया, 95,000 तो खर्चा बुक हो गया, बट 37,000 पार्टनर्स में राइट ऑफ नहीं हुआ, यानी कि खर्चा नहीं बुक हुआ, तो 37,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि नहीं। प्रॉफिट जब एक्सपेंस नहीं गया, तो ये जो 37,000 है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम केस बनाते हैं, अगर पार्टनर रिटायर नहीं, मर रहा हो, तब क्या होगा। अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो कितना पैसा मिलेगा। मान लो ए की डेथ हो रही है, तो जल्दी देख के बताओ कितना पैसा मिलेगा ए की डेथ पे। 5 लाख तो ये, और 12,000 और 10 22,000, तो 5,22,000 मिलेंगे, करेक्ट। तो असेट बेचने पे 5,22,000 मिले तो एंट्री यही होगी, बट अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,22,000। इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां पे कितना डालूंगा मैं, 5,22,000। तो सोचो, असेट हम सोच के बैठे थे कितना दे के जाएगा, 37, दे कितना गया, 5,22,000, ज्यादा दे गया, तो वो हमारे लिए क्या है, फायदा। तो वो फायदा किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे आ जाएगा जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। और प्रॉफिट याद करो हमेशा आता भी इस अकाउंट में, असेट अकाउंट में यहीं पे ही है। तुमने चैप्टर पढ़ रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जब असेट बेचते हैं और बेचने पे प्रॉफिट होता है तो किधर लेते थे प्रॉफिट, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लेते थे ना, और वो प्रॉफिट लॉस से अल्टीमेटली ओनर को ही बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में डाल दो, या फिर सीधे सीधे कहाँ डाल दो, कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तुम यहाँ पे पी&एल अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली पी&एल अप्रोप्रिएशन में जाके भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जितना का भी प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड जहां पे असेट मेथड है। और लास्ट है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है जल्दी से डिस्कस कर रहा हूं मैं, फिर खत्म। सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। अब इस सिंकिंग फंड मेथड में क्या होगा कि तुमने जो प्रीमियम पे करा उसको तो इसी तरीके से असेट रिकॉर्ड करोगे, बट जितना भी प्रीमियम है उस प्रीमियम को उतना प्रीमियम का प्रॉफिट अलग से निकाल लोगे। जैसे ही हमने ये असेट बुक किया, इतना ही प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल के एक अलग रिजर्व में रख देंगे जिसका नाम होगा जेएलपी रिजर्व, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या करी जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू जेएलपी रिजर्व, 1,20,000, ठीक है। ये भी कब होगी, साल के बिगिनिंग में। तो आपने जितना भी प्रीमियम पे करा उसको असेट बुक करो, एंड उसका इक्वल अमाउंट, जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हो उसका इक्वल अमाउंट प्रॉफिट्स में से निकालो, पी&एल अप्रोप्रिएशन से निकालो और एक अलग रिजर्व में डाल दो। तो क्या दिखेगा, जेएलपी असेट डेबिट टू बैंक और एक पी&एल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व। तो हाँ, तो दोनों दिखेंगे, असेट रिजर्व दोनों दिखेंगे। अब मैं बना रहा हूं तुम्हारे सामने जेएलपी रिजर्व का खाता भी, ठीक है। अब बस लास्ट चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, कई बार यही समझ नहीं आता, बस लास्ट है बिल्कुल। अब देखो, पहली एंट्री जेएलपी असेट टू बैंक, वो यहां पे पोस्ट कर दी है। दूसरी एंट्री क्या है, पी&एल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व, इसकी भी पोस्टिंग करनी है मुझे। तो जेएलपी रिजर्व में क्या करूं, क्रेडिट 1,20,000 किसके नाम से, पी&एल अप्रोप्रिएशन। तो मैं यहां डाल दूंगा P&L अप्रोप्रिएशन 1,20,000, ठीक है। अब फिर साल खत्म हुआ,
हमने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया, हाँ भाई कितना पैसा बनता है मेरा अगर आज पॉलिसी सरेंडर करूं, तो क्या मिला? ठेंगा, कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि सारा का सारा नुकसान। तो हम क्या करेंगे, इस एसेट को राइट ऑफ करना है, तो इस एसेट को हम राइट ऑफ कहां से करेंगे? जो रिजर्व हमने बनवाया है ना उसी में से, वहीं से निकालो और वहीं से राइट ऑफ कर दो। अभी तक हम कहां से राइट ऑफ कर रहे थे? पीनल अप्रोप्रिएशन से, बट अब हम राइट ऑफ करेंगे कहां से? रिजर्व से, क्योंकि पीनल अप्रोप्रिएशन भी क्या है? प्रॉफिट्स, और जेएलपी रिजर्व भी क्या है? प्रॉफिट्स, क्योंकि पीनल अप्रोप्रिएशन से तो निकाला है ना प्रॉफिट्स। तो अब क्या करेंगे, पीनल अप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करने की जगह पे हम राइट ऑफ करेंगे जेएलपी रिजर्व से। और फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा राइट ऑफ हो रहा है, तो हम पूरा का पूरा 1,20,000 राइट ऑफ कर देंगे। तो ठीक है जी, एंट्री क्या हुई? जेएलपी रिजर्व डेबिट टू जेएलपी एसेट। तो जेएलपी रिजर्व डेबिट टू जेएलपी एसेट, पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया। 1,20,000 पूरा खत्म हो गया। ठीक, तो ये तो रिजर्व खत्म हुआ, एसेट भी खत्म करना है। एसेट हम राइट ऑफ करते हैं किससे? पीनल अप्रोप्रिएशन से। अब इसको हटा के क्या कर देंगे यहाँ पे? जेएलपी रिजर्व। ठीक है, अब आते हैं ईयर 2 पे, सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर की शुरुआत में फिर ये एंट्री होगी, प्रीमियम पे करेंगे, और फिर जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही प्रॉफिट्स भी अलग करेंगे। कहाँ से? पीनल अप्रोप्रिएशन से। तो ईयर 2 पे ये 2 एंट्री, तो पहले एसेट वाली एंट्री तो मैंने पोस्ट कर रखी है, जेएलपी रिजर्व वाली डाल देते हैं। फिर से जेएलपी रिजर्व में प्रॉफिट्स आ गए, P&L अप्रोप्रिएशन 1,20,000। फिर ये 2 एंट्रीज करने के बाद साल खत्म हुआ, हमने साल खत्म होने पे फोन किया, कितना एसेट की वैल्यू? उन्होंने कहा 12,000। हमने कहा एल है, हम तो एसेट रिकॉर्ड करके बैठे 1,20,000, मिलेंगे कितने? सिर्फ 12। तो 1,08,000 अब हमने ज़्यादा राइट रिकॉर्ड कर रखा है, तो उसको राइट ऑफ करेंगे। कहाँ से? रिजर्व से। तो यहाँ पे 1,20,000 की जगह पे क्या आ जाएगा? अब 1,08,000 जेएलपी रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी तो यूज कर सकते थे, पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं करे क्योंकि हमने उसमें से पहले से निकाल लिया। तो अब जेएलपी एसेट 1,08,000 से खत्म, तो जेएलपी रिजर्व का बैलेंस कितना हो गया? 12,000। और एसेट भी राइट ऑफ करेंगे, तो एसेट पीनल अप्रोप्रिएशन से नहीं, जेएलपी रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे 1,08,000। तो कितने का बच गया? वो भी 12। तो ध्यान से देखो, पहले एसेट और रिजर्व दोनों जीरो हो गए थे, तो दोनों इक्वल। दूसरे केस में सेकेंड ईयर में ये भी 12,000 और रिजर्व भी 12,000। ईयर 3 ले एक बार और आते हैं, फिर से ईयर 3 पे क्या होगी? एसेट खरीदना और रिजर्व में ट्रांसफर किया, 1,20,000 दोबारा से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, और एक बार और डालो P&L अप्रोप्रिएशन 1,20,000। फिर ईयर 3 पे वैल्यू क्या पता चली? सरेंडर वैल्यू है 37। तो फिर ईयर 3 पे क्या करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे, आई थिंक 93,000 आते, 95,000 राइट ऑफ करेंगे जेएलपी रिजर्व से। तो राइट ऑफ कर दो जेएलपी असेट 95,000, और यहां से आ जाएगा फिर बैलेंस कैरिड डाउन, कितनी वैल्यू थी? 37 ना, 37,000। मैं उतार ही दूँ पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर वहाँ चलते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,000, और इधर भी पीनल अप्रोप्रिएशन की जगह पे हम राइट ऑफ करेंगे जेएलपी रिजर्व से। अब आते हैं लास्ट में पार्टनर की डेथ हो गई, तो डेथ पे पैसा मिलेगा, ए का 5 लाख और बी का और सी का सरेंडर वैल्यू यानी कि 5,22,000 मिल रहे हैं। तो बेचेंगे तो एंट्री तो यही होगी, बैंक टू जेएलपी एसेट ही बेचा, तो 5,22,000 आ गए। अब प्रॉफिट हो रहा है हमारे को कितने का? चेक करने के बाद जल्दी से 522 माइनस 37, 4,85,000 का प्रॉफिट हो रहा है।
4,85,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमारे पास एक प्रॉफिट का अकाउंट है, क्या नाम है उसका? JLP रिजर्व। प्रॉफिट्स ही तो है उसके अंदर, तो ये 4,85,000 प्रॉफिट्स उसमें ट्रांसफर कर दो, JLP रिजर्व। ठीक है, 4,85,000। अब देखो इधर डेबिट हो रहा है, JLP एसेट में डेबिट हुआ JLP रिजर्व, तो JLP रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा JLP एसेट। तो यहां डाल दो JLP एसेट 4,85,000। तो टोटल पैसे कितने हो गए? 4,85,000 प्लस 37, देखो 5,22,000 पूरे हो गए। तो अब ये 5,22,000 पूरा अमाउंट पार्टनर्स बांट देना A, B और C में। ठीक है, इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग होती है। असेट मेथड में 5,22,000 बच चुका था, वहां पे भी सब, वहां पे कहते हो, वहां पे मुझसे कहते हैं बच्चे कि सर यहां पे तो आपने 4,85,000 ही बांटा। असेट मेथड में मैंने क्या किया था, यहाँ पे JLP रिजर्व की जगह पे क्या लिखा था? A, B, C। बच्चे कहते हैं यहाँ पे तो सर आपने सिर्फ 4,85,000 बांटे, बटने तो चाहिए थे 5,22,000 पूरा। 5,22,000 बच चुका है वहां पे भी। कैसे? 37,000 ऑलरेडी पहले बच चुका है, क्योंकि आपने प्रॉफिट्स उतने कम राइट ऑफ करे थे, तो 37,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था पहले। बच गए थे 4,85,000, तो आपने तब राइट ऑफ कर दिए थे। JLP रिजर्व मेथड या सिंकिंग फंड मेथड में ये 37 नहीं बांटे होते पार्टनर्स में, नहीं बटते, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पीनल अप्रोप्रिएशन से जो JLP रिजर्व में पैसा डाला, ये पूरा पॉलिसी का पैसा डाल दिया। अगर आप पीनल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे 1,20,000 से, तो पूरा का पूरा प्रीमियम राइट ऑफ कर रहे हो ना, हर साल प्रीमियम पूरा राइट ऑफ हो रहा है, खर्चा पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट भी उतने कम बटे। ठीक है, तो लास्ट में जब आप JLP रिजर्व से राइट ऑफ करोगे, तो JLP रिजर्व में वो पैसा भी होगा जो पार्टनर को पहले बटना चाहिए था, नहीं बटा, तो अल्टीमेटली पूरा 5,22,000 यहां से बढ़ जाता है A, B, C करके। ठीक है, तो यहां से हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म हो जाता है। किसकी? इसकी। हम प्रॉफिट्स में से देखो, हम अभी असेट मेथड में क्या कर रहे थे, असेट को राइट ऑफ अगर करते थे तो राइट ऑफ करते थे पीनल अप्रोप्रिएशन से, है ना। तो इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही पूरा प्रॉफिट्स निकाल के अलग कर रहे हैं कि अगर राइट ऑफ करना पड़ेगा तो मैक्सिमम क्या, जितना प्रीमियम पे करना पूरा राइट ऑफ करना पड़ सकता है ना मैक्सिमम, तो पहले निकल के अलग कर दो। वो कह रहा है पीनल अप्रोप्रिएशन बार बार मेरे पास मत आओ कि राइट ऑफ करने के लिए इतना पैसे दे दो, तुम जितना प्रीमियम पे कर रहे हो उतना ही प्रॉफिट मेरे से ले जाओ। अगर राइट ऑफ करना पड़ेगा तो ज़्यादा ज़्यादा क्या, सारा ही राइट ऑफ करना पड़ेगा, सारा ले जाओ मेरे साथ, मेरे पास से। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, सारा राइट ऑफ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा ही राइट ऑफ करते हैं, कुछ कुछ बच जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसलिए यहां डालते हैं JLP रिजर्व में, और कहते हैं JLP रिजर्व से ही राइट ऑफ करो, उस पीनल अप्रोप्रिएशन से मत राइट ऑफ करो। ठीक, चलो जी, तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।